हम हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोची में, जहां पे केरला स्ट्राइकर्स ने काफी एक अच्छा फाइटिंग परफॉर्मेंस दिया जरूर है, लेकिन कर्नाटका बुलडोजर्स ने भी उनके सामने एक ठोस लक्ष्य रखा है। आज सुपर संडे है, इसी वजह से अच्छा एक टर्नआउट भी है और पूरी तरीके से हम तैयार हैं कि बहुत एक मजेदार दूसरा इनिंग्स भी आने वाला है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं मैदान की ओर, जहां पे सबीना तैयार है आज के लिए काबन कमाल कैचेस के लिए। चलते हैं सबीना के पास। Ladies and gentlemen, you are watching Parlay 2020 CCL 2016. Now the best thing about CCL is that it brings us what we absolutely love, two of our favorite things, movies and cricket. We get to watch our favorite stars play our favorite game, the best of both worlds. And right now we've had one such very entertaining first innings by the Karnataka Bulldozers. So we have four very fun people with us today. We have Sharmila and of course Rahul from Karnataka Bulldozers. And we have Riaz and we have Angna from Kerala Strikers. So we're going to start off from Rahul. So Rahul, that was a great innings, 167 for 7. Do you think you gave your best at the batting? Yeah, the pitch is keeping low. The pitch is very low. So I think anything above 150 is a good total. So with our bowling lineup, I hope we should pull it off. So do you think it's going to be a nail biter the second half? Hope not. Hope not. Well, Sharmila, you're here to support the Karnataka Bulldozers. So are you proud of your team? How did it feel sitting there cheering for them and watching them bat? Being a Kannadiga myself, I'm always very proud to support my team because of being in Bangalore and everything. I think we have a superb team and they've performed very well. So I wish them all the very best for the second inning. That's wonderful. From what I hear and see, I think the Kerala Strikers are very calm and composed, but I think this is the calm before the storm. And that was a great show by Kerala Strikers as well. 7 wickets down. I think that was brilliant bowling and fielding. So I'm going to go ahead and ask Riaz, so what do you think is going to be your biggest challenge while you're batting? I think our boys did well and they will keep on doing well. Halfway through, the other half is there always. So let's our Kerala Strikers boys rock on and get a winning score. Wonderful. And Angna, who's your favorite Kerala Strikers player? Right next to me and Rajiv. Okay, so that's Riaz and Rajiv. That's great. Now, right now we have a small little competition, a contest that we're conducting, which is called the Carbon Kamal Catch. We have 3 of our guests who've joined us. So what we're going to do is, Rahul, you're going to give us your best shot, and they're going to one after the other catch your shot. So we're going to pick one gentleman as the best catcher. He's going to win the Carbon Kamal Catch Award towards the presentation, of course. So let's, without further ado, go ahead. That was a Carbon Kamal catch indeed. Okay, our next contestant, it's your turn. I hope he catches it. Too bad. Okay, the third contestant, come on. And he misses it too. I think it's clear who won that Carbon Kamal catch competition, but we'll have that announced during the presentation ceremony. Okay, I think Rahul has to go and get ready for his innings. All the very best. Give us a great show like you always do. Thank you so much. That's all from us here at the ground. On to the commentators. तो मनोज, क्या लगा आपको तकनीक के बारे में? मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से असमंजस में रह गए वो 2 सज्जन जो बाद में आए थे। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन स्टाइल, इंडियन स्टाइल, कौन सा करना चाहिए? हाथ ऊपर हाथ नीचे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी की है, 167 रन बनाए हैं। निर्धारित 20 ओवर्स में 168 रनों की आवश्यकता रहेगी केरला स्ट्राइकर्स को। सलामी साझेदारी में दाईं ओर आप नजर रखिए राजीव पिल्लई पे। बहुत अच्छे आकर्षक खिलाड़ी हैं, बड़े स्ट्रोक्स लगाने की महारत है उनको। और उनके साथ साथ आ रहे हैं बीके जो कि 55 नंबर की जर्सी पहनते हैं। तो राजीव पिल्लई और उनके साथ साथ बीके सलामी जोड़ी केरला स्ट्राइकर्स के लिए, और साथ साथ एक जोड़ी जो कि कमेंट्री बॉक्स में भी अब बनती हुई, क्योंककि देखना यह है कि जो मेहनत कर्नाटका बुलडोजर के प्रदीप 37, राजीव 35 रन बना करके 167 तक अपनी टीम के स्कोर को लेकर गए हैं, तो वो किस तरीके से यहाँ पर सफलता प्राप्त करते हैं।
जी हाँ, स्ट्राइक ले रहे हैं 55 नंबर की जर्सी पहन के बी के, और वहीं जयराम कार्तिक जे के जो खुद को बुलाते हैं वो गेंदबाजी करने आ रहे हैं पहली ओवर के साथ। एक अच्छी गति के गेंदबाज हैं इस टीम में। डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए जे के। तो हम जिस तरीके से बोल रहे थे कि काफी अच्छी भिन्नता है इस बॉलिंग अटैक में, उसका पूरा भरोसा यहां पे रहेगा जरूर कप्तान सुदीप को, जो खुद विकेट कीपिंग कर रहे हैं। एक स्लिप, एक वाइडिश स्लिप भी है जेके के लिए। इस बार वाइड का करार दिया जाएगा, यानी पहले रन्स इस पूरी पारी के केरला स्ट्राइकर्स के लिए। 168 की लक्ष्य में पहला रन बल्ले से नहीं आता हुआ, लेकिन वाइड के जरिए पहला रन। तो आस्किंग रेट 8 से ऊपर की है, और कहीं ना कहीं इस गणना को दिमाग में रखना होगा इस आरंभिक जोड़ी को। और यहां पर वाइड का इशारा और साथ में गेंद फाइन लेग की तरफ से सीमा रेखा के बाहर, तो ये चौके का भी इशारा आते हुए, तो काफी मुश्किल फैंस झूमते हुए रन किसी तरीके से भी आए, लेकिन रन आए। केरला के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। इससे पहले जो उनका मैच था उसमें वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे, और तेलुगु वॉरियर ने उन्हें 5 विकेट से परास्त किया था इससे पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, जो कि विगत सप्ताह के शनिवार और इतवार में जो मैच खेले गए थे। और यहाँ सीम का उपयोग किया, अंदर की तरफ गेंद को लेकर आए, और ये एलबीडब्ल्यू का इशारा, वहां पर अंपायर ने उंगली सीधी ऊपर खड़ी की, और पहला विकेट आउट होते हुए कॉडियरी के रूप में। रिप्ले से और अच्छा अंदाज लग जाएगा। रेफरल किया गया है क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि ये स्टंप पे जाके लग रही थी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से छकाया था। उससे पहले एक अच्छा फील्ड परिवर्तन भी, एक लेग स्लिप लाए थे, यानी मंसूबा बिल्कुल साफ था, बिल्कुल लीगल डिलीवरी यहां पे जेके की। और सवाल अब यही है कि क्या ये सीधा जाके स्टंप पे लगता, और साथ साथ कोई इनसाइड एज लगा था कि नहीं। अब स्टंप्स पे ये भी देख सकते हैं कि मैट के जरिए, जी हां, संपर्क तो बिल्कुल सामने ही लगता हुआ। यहां पे बचना काफी मुश्किल है बीके के लिए। ऐसा लगता है कि शायद थर्ड अंपायर इसे गेंदबाज के ही पक्ष में दे सकते हैं। तो एक भी रन बल्ले से नहीं निकला है। और अब नए बैट्समैन अर्जुन आए हैं, और ये भी उस बड़े उछाल के साथ गेंद ऊपर की तरफ आई, तो अनइवन स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद गेंद उठती हुई। जयराम कार्तिक का ये पहला ओवर, और ये सीसीएल सुपर फैन के लिए कॉल करिए 53333599 पर, और आज ही जीतिए 1 लाख रुपया। अर्जुन नंद कुमार केरला स्ट्राइकर के वन डाउन बैट्समैन, हल्के से कलाइयों का उपयोग किया, मोड़ा उसे स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। बहुत ही पहले ही स्टार्ट ले लिया था दोनों बैट्समैन ने, काफी स्ट्रोक के साथ ही। फैशन होता है हर अंदाज, हर बॉल खेलने से पहले जिस तरीके से खुद के साथ बात करते हैं, लेकिन अच्छे आकर्षक बल्लेबाज हैं, और अगर जम जाएं तो काफी परेशानी का सबब बन सकते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं जेके, उनकी एक प्राकृतिक कोण है जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज के अंदर आती हुई, लेकिन शुरुआत जब करते हैं मिडिल स्टंप से, तब लाजमी है कि उसके बाद उन्हें इसी वजह से एक वाइड करार ही दिया जाता है। पहले ओवर में ही 8 रन दे चुके हैं, जिनमें से 7 वाइड के जरिए। निराश और परेशान ये डगआउट केरला स्ट्राइकर का, और यहां पर ये है कर्नाटका बुलडोजर का डगआउट, और यहां पर ये स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन जैसे तैसे अपने अपने छोर पकड़ते हुए। और ये रेफरल के लिए फिर से इशारा। सुदीप बहुत उत्साहित थे, शुरुआत से ही वो रेफर करना चाहते थे,
और देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि लीगल डिलीवरी तो है, लेकिन फिर से यही देखना है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि अंदर की तरफ कोण बनाती हुई तो आ रही थी गेंद। अगर यहाँ पे शायद राजीव पिल्लई ज़रूर बच सकते हैं, ये बहुत करीबी मामला हो सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ चुके थे, शायद इसके ज़रिए बच सकते हैं यहाँ पे राकेश। काफी आगे आ गए थे पॉपिंग क्रीज से और फ्रंट फुट पर कहीं ना कहीं यदि शंका हुई तो बैट्समैन को लाभ मिल सकता है। इस रिप्ले पे आपको समझ आएगा कि कितना आगे निकल चुके थे, तो बॉल थोड़ा और स्विंग कर रही थी। अगर और स्विंग करती यहाँ पे तो शायद लेग स्टंप को चूमती हुई या बचती हुई निकल सकती थी। तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट शायद बल्लेबाज को मिल सकता है, पर काफी करीबी मामला। अगर पहले ओवर में 2 विकेट यहाँ पे चटका दे, खासकर राजीव पिल्लई का विकेट, तो मुझे लगता है कि केरला स्ट्राइकर्स के लिए यहां से काम काफी मुश्किल हो जाएगा, लगभग नामुमकिन। लगभग मिडिल स्टंप से थोड़ा सा बाहर की तरफ। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है ये परिणाम? मुश्किल लग रहा है कि कहीं ना कहीं यदि कहीं शंका हुई तो बैट्समैन को लाभ मिल सकता है। और इसके साथ ये नॉट आउट का इशारा। झूमते हुए केरला स्ट्राइकर के जबरदस्त फैन इस समय जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम पर भरपूर आनंद लेते हुए। तो कप्तान सुदीप अब स्टंप्स के सहारे या स्टंप्स के साथ ही खड़े होंगे। बहुत अच्छी कीपिंग करते हैं। आखिरी गेंद पे देखते हैं क्या होता है। बहुत इवेंटफुल फर्स्ट ओवर जिसमें बहुत से वाइड्स गए हैं, बल्ले सिर्फ एक ही रन गया है और साथ साथ एक विकेट भी गिरा है। ओ, एक और इन स्विंगिंग डिलीवरी, लेकिन ये जरूर लेग साइड को मिस कर जाती है। पहले ओवर की समाप्ति पे 9 पे 1 केरला स्ट्राइकर्स। काफी मुश्किलात स्थिति में और यहां पर केरला स्ट्राइकर्स के डगआउट में उनके सूत्रधार और कर्णधार यहां मोहन, और पहले ओवर में एक विकेट आउट हो जाने के बाद एक और बहुत प्रतिभाशाली गेंदबाज अब आ चुके हैं, ध्रुव शर्मा। एक निपी सा एक्शन है उनका, नेचुरल एक गति प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। यहाँ पे राजीव काफी आगे निकल आए थे, लेकिन कोई असमंजस की स्थिति नहीं पैदा कर पाए फील्डर, पर एक अच्छा दबाव बना के रखा है कर्नाटका बुलडोजर्स ने। हालांकि 10 रन जरूर अब तक कंसीड कर दिए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही रन बल्ले से निकला है, यानी बहुत अच्छी अनुशासित गेंदबाजी। और आप कह सकते हैं कि एक विकेट के फलस्वरूप काफी दबाव बनाने में कामयाब रही है कर्नाटका की टीम। और यदि कहीं अनुशासन भंग किया है तो बस गेंद को लेग स्टंप के बाहर डाल करके, और एक बार तो फिर एक वाइड, और फिर उसके बाद एक 4 रन, और फिर उसके बाद एक फ्री हिट, सब कुछ एक ही गेंद पर। तो ये एक बार फिर से वाइड का इशारा आते हुए ओवर पिच गेंद को बहुत भरपूर शानदार तरीके से इस्तेमाल किया, और ये एक्स्ट्रा कवर की तरफ से चौका, और बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका पारी का। इस खिलाड़ी पे बहुत कुछ निर्भर है। अगर केरला स्ट्राइकर्स करीब पहुंचेंगे इस टारगेट के, तो राजीव पिल्लई अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। और इसी की सोच में एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड पोजीशन है फिलहाल उनके लिए, जो इस बॉल के लिए बदल दी जाएगी। एक शॉर्ट कवर रखा था सुदीप ने, लेकिन इस चौके के बाद उसे हटा दिया है। याद रखिए पावर प्ले के ओवर्स, पहले 6 ओवर्स
और हर बॉल से पहले का रूटीन आप देखेंगे, राजीव ऊपर वाले की तरफ बात करेंगे, खुद से बात करेंगे और उसके बाद काफी एक अनोखे अंदाज में ही खेलते हैं, लेकिन बहुत ऐसे बल्लेबाज हैं राकेश जो टिकना जानते हैं क्रीज पे, इन्हें आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देवान क्या बात करते होंगे कि मालिक तेरा ही सहारा। मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन सफेद कमीज में वहां पे, और जरूर आए हैं केरला स्ट्राइकर्स का ही समर्थन करने के लिए। आज काफी हद तक केरला स्ट्राइकर्स के लिए भी जिस तरीके से चेन्नई राइनोज के लिए थी करो या मरो की स्थिति इस मैच में, 154 रनों की जरूरत 110 गेंदों पे। ये बल्लेबाज बार बार हम यही कह रहे हैं कि अगर ये बल्लेबाज टिका रहे तो केरला स्ट्राइकर्स के लिए मौके बने रहेंगे। साथ ही आने वाले बैट्समैन जिनमें कि अर्जुन नंद कुमार उनका सहयोग ढंग से करें, धैर्य के साथ और साहस के साथ वो उनका साथ निभाएं। यहाँ पर एक सीधा स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए रहमान है, उसके बाद गोपन है, ये सब काफी एक कसी हुई शुरुआत की थी केरला स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने खुद भी, क्योंकि पहले 6 ओवर्स में यानी पावर प्ले में सिर्फ 43 रन ही बनाने दिए थे कर्नाटका बुलडोजर्स को। तो लगभग वैसी ही अगर गेंदबाजी यहां पे करने में कामयाब हो कर्नाटका बुलडोजर्स के गेंदबाज, तो केरला स्ट्राइकर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो सकती है इस मैच में। फिलहाल कार्तिक अपने दूसरे ओवर के साथ, और बहुत बहुत टेक्स्ट बुक डिफेंसिव स्ट्रोक। राजीव पिल्लई एक बहुत रोचक खिलाड़ी हैं। राकेश हर बॉल से पहले उनका आप एक पूरा एक सिस्टम देखेंगे, जिस तरीके से सबसे पहले बल्ले को चूमते हैं, उसके बाद ऊपर देखते हैं, बहुत ज्यादा बाहर चूकते हुए यहां पर कार्तिक, और वाइड का इशारा और एक अतिरिक्त रन और बढ़ते हुए। हम चर्चा कर रहे थे कि इन अतिरिक्तों पर कहीं ना कहीं निगाह रखनी होगी, अंकुश लगाना होगा। मानसिकता ऐसी है कि बड़े स्ट्रोक्स ना लगें, तो गेंद को कहां डिप कराएं, कहां पिच कराएं, इसको लेकर के काफी चिंतित रहते हैं। अर्जित करने का भी मौका बन सकता है। अर्जुन नंद कुमार यहां पे फिर से अच्छी तरह से संपर्क नहीं कर पाए, और अच्छी सोच के तहत ये सारे फील्ड प्लेसमेंट्स, क्योंकि कार्तिक जैसा कि हम बता रहे हैं उनकी एक प्राकृतिक एक कोण है जो कि बल्लेबाज के अंदर आती है। दोनों ही टीमों के डगआउट्स में काफी सोचने की स्थिति, काफी चिंता की लकीरें उनके शेष खिलाड़ियों पर, स्ट्राइकर पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी डाल लेते हैं कार्तिक, लेकिन सब दबावों को यहां पर हटाते हुए गेंद को निकाल दिया इस बार 6 रन के लिए सीमा रेखा के ऊपर से, और ये छक्के के साथ स्कोर पहुंचा दिया 23 पर। आंदोलित कर दिया है केरला स्ट्राइकर्स के इन फैंस को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोची में, और बहुत साहसी शॉट अर्जुन नंद कुमार का, क्योंकि उसी पोजीशन में एक फील्डर को तैनात किया था सुदीप ने, लेकिन उसी खिलाड़ी को टेक ऑन करते हुए उसके सर के ऊपर से बेहतरीन प्लेसमेंट, अच्छा संपर्क, और जयराम कार्तिक की इस गेंद को आसानी से 6 रन के लिए भेज दिया अर्जुन नंद कुमार ने। तो पलटवार अच्छा होता हुआ केरला स्ट्राइकर्स का। तीसरे ओवर में सिर्फ 23 रन। ऑपरेशन रिस्टोर 100 आपको याद दिला दे कि जितने भी एसिड अटैक के विक्टिम्स हैं उनके लिए एक जिंदगी में दूसरा एक अवसर प्राप्त करने का एक जरिया है, और उसके लिए हर रन के लिए, यानी पिछला जो छक्का था उसके लिए 6000 रुपए डोनेट करेगी बिग ब्रदर फाउंडेशन ऑपरेशन 100 रिस्टोर इनिशिएटिव के लिए। इस बार वाइड नहीं, अच्छी चतुराई भरी गेंदबाजी, इस बार थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया, क्योंकि कार्तिक के आमतौर पे हर गेंद स्टंप्स पे ही शुरुआत करते हैं, इस बार काफी वाइड से शुरुआत की थी। और इस प्रकार के सामाजिक सरोकार में कहीं ना कहीं जन सहभागिता को जोड़ने के लिए और स्किन डोनेशन को प्रमोट करने के लिए भी शतरंज का खेल यहां पे चलता हुआ, जिस तरीके से हर बॉल से पहले थोड़ा बहुत परिवर्तन करते ही रहते हैं, थोड़ा सा खिलवाड़ कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से बल्लेबाजों के साथ। 3 ओवर में 24 रन बने हैं, 1 विकेट गिरा है, लेकिन कतई आप कह नहीं सकते कि वन साइडेड, एक तरफा मैच बिल्कुल नहीं रहा है।
नंद कुमार फिलहाल स्ट्राइक पे, इस बार ऑन साइड पे गेंद और इसे आसानी के साथ लेग साइड पे खेल दिया 4 रन के लिए। और ऐसे अगर आप दिशा में भटकेंगे तो पड़ेंगे आपको फटके। लेते हुए वो झटके और पड़ेंगे उनको फटके। लेकिन जो माइंड गेम है, डिवाइन बॉलर के दिमाग में ये रहता है कि कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रोक ना लग जाए, ये ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए दिशा से भटक जाते हैं और सही तरीके से गेंद को पिच नहीं कर पाते और परिणाम ये होता है कि यूं ही उनको रन गंवाने पड़ते हैं। सुदीप वहां पे इशारे से ये बताते हुए कि आपको सिर्फ ऑफ स्टंप के बाहर ही गेंद फेंकना था, लेग स्टंप पे क्यों चले गए आप। लेकिन हमेशा पहले गेंद पे अगर चौका पड़ जाए तो काफी दबाव आ जाता है गेंदबाज पे। इस बार ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, वाइड करार दिया जाएगा, यानी केरला स्ट्राइकर्स के इस पारी में गतिशीलता धीरे धीरे मिलती हुई। पहला विकेट जब गिरा था तब सिर्फ 6 ही रन बने थे, लेकिन उसके बाद से नंद कुमार और पिल्लई मिलके एक अच्छी साझेदारी जमाते हुए 23 रन बन चुके हैं और बहुत जल्द ही वक्त में यहाँ पे यॉर्कर लेंथ गेंद, तो इस पे कोई रन बनाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी एक अच्छा ओवर रहा है क्योंकि पहले ही 2 गेंद से 5 रन बटोर चुके हैं केरला स्ट्राइकर्स। प्रति ओवर के हिसाब से यहां से आगे और ये फुल टॉस गेंद, और उसे एक बार मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से निकालने की कोशिश की, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्टंप से भी खुद को हटा चुके हैं, यानी जानते हैं कि शायद गेंदबाज पे थोड़ा अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है अगर वो स्टंप्स के साथ चिपक के खड़े रहें। और ये काफी अच्छा ओवर रहा है। बहुत उत्साहित होंगे पद्मश्री लेफ्टिनेंट कर्नल वी मोहनलाल। ओह, बहुत करीबी मामला, इनसाइड एज था, पर अच्छी बैकिंग भी फील्डिंग से। सिर्फ 1 ही रन मिलेगा राजीव पिल्लई को। लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से आरंभिक बैट्समैन, और ये देखिए बॉलर के पेस को इस्तेमाल किया, गेंद का पीछा किया, अंतिम क्षणों में लीड कट के अंदाज में बल्ला चलाया और 4 रन मिलते हुए। तो पहली गेंद पर चौका और उसके बाद एक और चौका लगते हुए। कर्नाटका बुलडोजर्स के एक वक्त पे मेंटोर थे गुंडप्पा विश्वनाथ, वो बहुत खुश होते ऐसा शॉट देख के, और वो जरूर ये मैच देख भी रहे होंगे, आनंद भी उठा रहे होंगे। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साबित हुआ है। आखिरी गेंद पे भी एक अच्छा शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा, यानी 4 ओवर के बाद 36 पे 1 केरला स्ट्राइकर्स। और दूसरे विकेट के लिए एक भागीदारी यहां पर पनपते हुए पिल्लई और नंद कुमार के बीच में। बीके आउट हुए 0 के स्कोर पर। एलबीडब्ल्यू बॉल कार्तिक एक अंदर की तरफ आती हुई गेंद को समझ नहीं पाए और स्टंप्स के सामने उनके पैड से टकराई। और 11 एक्स्ट्रा, 4 ओवर के बाद 36 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पीछे बैकफुट पर जाकर के उसे कट कर दिया, थर्ड मैन की तरफ गेंद, 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। कार्तिक के हाव भाव से साफ पता चल रहा है कि वो ज्यादा उत्साहित नहीं हुए, खासकर इस फील्डिंग की कोशिश से। लेकिन पावर प्लेज में हमेशा कहा जाता है अगर आप स्लैश करें तो जितना तेज स्लैश कर सकते हैं वैसा ही कीजिए, क्योंकि बाहरी किनारा लगा जरूर था, लेकिन जिस गति के साथ गेंद गई कोई मौका नहीं मिला। शॉट थर्ड मैन में जो फील्डर था, कोई भी मौका नहीं। 4 रन के साथ 40 तक पहुंच चुकी है केरला स्ट्राइकर्स। ये एक अच्छी नींव बनाते हुए नंद कुमार और पिल्लई। एक चिंता का विषय है कि इसके बाद ज्यादा अच्छे बल्लेबाज जरूर बचे नहीं हैं, लेकिन अगर ये दोनों ही खिलाड़ी इस लक्ष्य को काफी करीब लेके आए तो बाकी खिलाड़ियों के लिए काम काफी आसान हो जाएगा। केरला स्ट्राइकर्स अपने लिए और साथ साथ चेन्नई राइनोज के लिए एक जीवन दान का अवसर प्राप्त कर सकते हैं अगर कर्नाटका बुलडोजर्स को आज हराने में कामयाब रहे ये टीम। और यहाँ पर अर्जुन ने गेंद को हल्के से दिशा दी। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में वहाँ पर महेश तैनात थे और 1 रन से स्कोर 41 1 विकेट के नुकसान पर। अर्जुन 22 पर और राजीव पिल्लई खेल रहे हैं 8 के स्कोर पर। 127 94 गेंदों पर बनाने हैं। यहां पर अर्जुन एक बार फिर से सामना करेंगे।
कहीं ना कहीं उनकी निगाहें ऊपर की तरफ, एक बड़े स्कोर, एक बड़ी निश्चय की ओर। हल्के से पुश किया लेकिन सिंगल लेने से नहीं रोक पाए। वहां पर साथ में आसमान पर ले जाते हुए और फिर से एक बार बैकफुट पर जाते हुए कट किया। सीसीएल सुपर फैन क्वेश्चन, थोड़ा सा पेचीदा सवाल। ये बताइए कि कैप्टन कौन है केरला स्ट्राइकर्स टीम का? इख्तियार कर सकते हैं। अच्छी एक साझेदारी पनपती हुई दोनों के बीच। जेके के तीसरे ओवर में एक और इन कटर जिसे बहुत सावधानी के साथ खेला। और ये है यामा फैसिनो, जो कि युवाओं के लिए एक धड़कन बन चुकी है इस समय और निसंदेह युवा शक्ति के लिए इस समय की एक बेहतरीन स्कूटर, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। यामाहा रेव्स योर हार्ट। फैसिनो और यहाँ पीछे बैकफुट पर जाकर के बेहतरीन कवर ड्राइव और इसके साथ ही इन 4 रनों के साथ स्कोर हो गया 47, 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। तो 5 ओवर के बाद 47 पे 1 केरला स्ट्राइकर्स की अच्छी शुरुआत रही है। अर्जुन नंद कुमार भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, साथ साथ राजीव पिल्लई ने भी बहुत बखूबी उनका साथ निभाया है। कमेंट्री बॉक्स में फिलहाल एक परिवर्तन, मैं दिवान सेन और मेरे साथ अब फिर से जुड़ चुके हैं मनोज दत्त, और उन्होंने भी इस शॉट का काफी लुत्फ उठाया जिस तरीके से राजीव पिल्लई ने ये स्क्वायर कट एग्जीक्यूट किया था। बहुत ही बढ़िया तरीके से पोजीशन कर लिया था अपने आप को। अंतिम समय में गेंद और बल्ले के बीच में जब संपर्क स्थापित हुआ तो निश्चित रूप से यह तय हो गया था कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। लेकिन अभी भी मुश्किलें आसान नहीं हुई हैं केरला स्ट्राइकर्स के लिए। सीसीएल सुपर फैन बनने के लिए आपको टेलीफोन उठा करके कॉल करनी होगी और जीत जाएंगे आप 1 लाख रुपए नगद। देर मत कीजिए क्योंकि अब कोई खास समय शेष नहीं है। फोन उठाएं, कॉल करें और जीतें 1 लाख रुपए। एक बात तो तय है, जो शुरुआत हुई है उससे जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसमें एक कटौती हुई है। शुरुआत में 8.4 था, अब 8 से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है, यानी 15 ओवर में 121 रन। कर्नाटक बुलडोजर्स के गेंदबाज लगातार बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दबाव जरूर दिखाई दे रहा है।